کیا نہیں ہوتا تھا؟ مزاری نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کتوں کی دیکھ بھال کے لیے سینکڑوں نوکر تھے، ڈاکٹر تھے، نرسیں تھیں، راتب تیار کرنے کے لیے باورچی لگے تھے، ان کے سونے کے لیے مسہریاں تھیں، نرم نرم گدے تھے۔ مزاری کھل کر مسکرایا۔ نہ پوچھ کیسے کیسے ان کے ناز نخرے اٹھائے جاتے تھے۔ اس نے بے تکلفی سے قہقہا لگایا۔ کوئی کتا مر جاتا تو اس کا زبردست سیاپا ہوتا، نہایت شان سے اسے قبرستان پہنچایا جاتا، قبر کھودی جاتی، دفن کیا جاتا۔ کتنے ہی مرنے والے کتوں کے تو سنگ مرمر کے مقبرے تیار کیے گئے تھے، ان کا قبرستان بھی علیحدہ ہی تھا۔ تیری گل بات سمجھ نہیں آئی؟ رحیم داد منہ پھاڑ کر ہونک کی طرح مزاری کا چہرہ تکنے لگا۔ تجھے یہ سن کر اور تعجب ہوگا کہ ایک کتے کا تو بہت دھوم دھام سے پرنا بھی ہوا تھا۔ مزاری بدستور مسکراتا رہا۔ تیرا مطلب ہے کتے کا بیاہ ہوا تھا؟ رحیم داد واقعی اور زیادہ حیرت زدہ نظر آنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہوا تھا، مزاری نے نہایت اطمینان سے بتایا۔ نواب کے پاس ایک لیبراڈر ہوتا تھا، یہ اسی نسل کا کتا تھا جو تھوڑی دیر پہلے میرا کوتی لے کر آیا تھا۔ اس کا نام تھا۔ وہ اپنی بات کہتے کہتے الجھا، چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا کر رحیم داد کی جانب دیکھا۔ یاد آ گیا، بوبی نام تھا اس کا۔ کتی کا نام روشنا تھا۔ ان کا پرنا ہوا تو سرکاری طور پر اعلان کیا گیا، دعوت نامے چھپے، سارے راجے مہاراجے، نواب اور بڑے سرکاری افسروں کو دعوت نامے بھیجے گئے۔ وائسرائے کو بھی بلایا گیا تھا۔ وائسرائے کو بھی بلایا گیا تھا؟ رحیم داد نے تجسس انگیز نظروں سے شہزور مزاری کو دیکھا۔ ہاں صحیح، وائسرائے کو بھی دعوت دی گئی تھی، پر اس نے انکار کر دیا۔ سردار شہزور خان مزاری اب سنجیدہ ہو گیا تھا اور سنبھل سنبھل کر بول رہا تھا۔ ویسے سارے ہی راجے، نواب، سرکاری افسر مہمان بن کر دور دور سے جوناگڑھ آئے تھے۔ بوبی کی جنج بہت دھوم دھام سے روانہ ہوئی، لگ بھگ 1.5 لاکھ بندے شریک ہوئے۔ جنج کے آگے باڈی گارڈ کا دستہ مارچ کرتا تھا۔ نواب اپنے شاہی ہاتھی پر سوار تھا۔ بوبی صحرا باندھے شاندار گھوڑے پر بہت سج دھج کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کا خاص کوتی بھی گھوڑے پر بیٹھا تھا اور اسے سنبھالے ہوئے تھا۔ فوجی بینڈ بجتا تھا، آتش بازی چھوڑی جاتی تھی۔ رحیم داد حیرت سے بت بنا بیٹھا تھا۔ مزاری بتاتا رہا، بوبی جب روشنا کو بیاہ کر محل میں لایا تو زبردست دعوت ہوئی، عمدہ عمدہ کھانے اور پکوان مہمانوں کو کھلائے گئے۔ بوبی اپنی بنری کے ساتھ بہت شان سے مسند پر بیٹھا تھا۔ رحیم داد نے خمارآلود نظروں سے سردار مزاری کو دیکھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ بھنگ کے نشے میں بہک رہا ہے۔ بے چین ہو کر بولا، تو سچ کہہ رہا ہے؟ وہ ہولے ہولے لہرایا، یقین نہیں آتا۔ مجھے جھوٹ بول کر تجھ سے کیا لینا؟ مزاری کا لہجہ قدرے تھیکا تھا۔ میں تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، پر بوبی اور اس کے پرنے کے بارے میں تو اخباروں میں خبریں اور تصویریں بھی چھپی تھیں۔ خرچہ بھی بہت آیا ہوگا۔ لاکھوں روپے خرچ ہوئے تھے، مزاری نے رحیم داد کو بتایا۔ بمبئی کے ایک اخبار نے سخت اعتراض کیا تھا۔ لکھا تھا کہ ریاست کی 6.25 لاکھ ننگی بھوکی رعایا میں سے 12,000 غریب غربا کی اتنے روپے سے پورے 1 سال تک آرام سے گزر بسر ہو سکتی تھی۔ مزاری نے نشے کی جھونک میں زور کا قہقہا بلند کیا۔ پر ایسی باتوں سے کیا بنتا ہے؟ نواب کو اپنی ٹور اور شان دکھانی تھی، سو اس نے ایسی دکھائی کہ ہر طرف دھوم مچ گئی۔ نواب اب کدھر ہے؟ رحیم داد نے پوچھا۔ ادھر کراچی میں ہوتا ہے، مزاری نے مطلع کیا۔ اس نے ریاست جوناگڑھ پاکستان میں شامل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ سردار پٹیل ہندوستان کی حکومت میں ریاستوں کے معاملات کا مرکزی وزیر ہوتا تھا۔ اسے پتہ چلا تو سخت ناراض ہوا۔ ریاست کی ہندو رعایا کو بہکا کر زبردست گڑبڑ کرائی اور ریاست پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ نواب بیچارہ کسی نہ کسی طرح چھپتا لکتا پاکستان پہنچا۔ تب تو ہندوؤں نے نواب کو بدنام کرنے کے لیے اخباروں میں ایسی خبریں چھاپی ہوں گی۔ رحیم داد نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ ایسا ہی ہوگا، سردار مزاری نے اختلاف رائے نہ کیا
पर बॉबी और रोशना के पढ़ने की बात तो पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की है। रहीम दाद खामोश रहा, मज़ारी भी ना बोला। दोनों अब खासी तादाद में भंग चढ़ा चुके थे। रात उजली और खुशगवार थी, हवा के नर्म नर्म झोंके चलते थे। दोनों नशे से झूम रहे थे। उन्होंने अपने अपने गिलास ख़त्म किए और उठ खड़े हुए। सवेरे सरदार मज़ारी ने रहीमदाद के साथ नाश्ता किया। उसने हवेली में मज़ीद क़याम करने का इरादा तर्क कर दिया था। गैराज से अपनी पुरानी पेकार्ड निकाली। उसका ड्राइवर कैसर क्विज़लर कार लेकर अभी तक लाहौर से वापस नहीं आया था। दोनों पिकार्ड में बैठ गए। कार शमशीरवाला की जानिब दौड़ने लगी। पहर दिन चढ़े कार शमशीरवाला में दाखिल हुई। ये मज़ारी की जागीर में दरियाए सिंध के किनारे छोटा सा गांव था। रबी की फसल कट चुकी थी, खेत उजाड़ थे। जगह जगह कटी हुई फसलों के तरंडे नजर आते थे, मगर खेतों के आसपास खूब हरियाली थी। सायादार दरख्त ज़्यादा ही घने और गुंजान थे और दूर तक फैले हुए थे। दरख्तों के दामन में कसरत से घनी जंगली झाड़ियाँ थीं, झंगर थे। शमशीरवाली पुरफिजा और हरी भरी बस्ती थी, मगर आबादी कम थी। सरदार मज़ारी यहाँ आम तौर पर शिकार खेलने आता था। उसके क़याम के लिए एक बड़ा और कुशादा मकान था। गाँव के दूसरे मकानात आम तौर पर दरियाई घास और सरकंडों के बने हुए थे। चंद मकानों की दीवारें मिट्टी में भूसा मिलाकर खड़ी की गई थीं। उन पर शहतीर डालकर और बालाई हिस्से पर गीली मिट्टी का गारा फैलाकर छतें डाली गई थीं। दीवारें सीधी ना थीं, बुलंदी पर पहुंचकर अंदर की जानिब झुक गई थीं। मज़ारी के मकान की दीवारें कच्ची ईंटों से बनाई गई थीं। छत भी मिट्टी की थी, मगर दीवारें सीधी थीं। उसमें 4 बड़े बड़े कमरे थे। कमरों के आगे तवील दालान था। उसकी छत आगे झुकी हुई थी ताकि बारिश का पानी जमा ना हो। दालान की छत कमरों से कदरे ऊंची भी थी। दालान के सामने वसी अहाता था। अहाते के एक हिस्से में कई कोठड़ियाँ थीं, जिनमें चौकीदार और नौकर चाकर रहते थे। अनाज और भूसा रखा जाता था। अहाते में जगह जगह घने और सायेदार दरख्त थे। अहाते की 4 दीवारी मिट्टी की बनी हुई थी। अंदर दाखिल होने के लिए ऊंचा दरवाज़ा था। गांव बुलंदी पर था। नशेब में दरिया बहता था। गर्मी के दिन थे, मगर हर तरफ फैली हुई हरियाली और दरिया की सिमत से आने वाली हवा के भीगे भीगे झोंकों ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी थी। दरख्तों के नीचे ठंडक थी। रहीमदाद को गांव पसंद आया। पुरफिजा था और पुरसुकून भी था। सूरज डूबा, अंधेरा फैला। दरिया की सिमत से नरम और ठंडे झोंके आने लगे। शाम बड़ी फरहत अफ़ज़ा और सुहानी थी। रहीमदाद और मज़ारी ने दिन ढले गुस्ल किया था। उजला लिबास पहना था। दोनों इहाते में दालान के सामने मोंढों पर बैठ गए। फिर बोतल खुली, शराब का दौर चला और इसका सिलसिला रात गए तक जारी रहा। शराब देसी थी और खासी तुंद व तेज़ थी। दोनों ने खाना खाया और झूमते झामते जाकर बिस्तरों पर दराज हो गए। उनके पलंग इहाते के एक गोशे में बिछे थे। रहीमदाद सरदार शहज़ोर खां मज़ारी के हमरा उस बड़े कमरे में चला गया जिसमें कचहरी लगाई जाती थी। कमरे में दीवार के करीब खूब चौड़ा चकला पलंग था। उसके पाए ऊंचे ऊंचे थे। उन पर रंग और रोगन से खुशनुमा नक्श व निगार बने थे। पलंग पर साफ सुथरी चादर बिछी थी। पायंती 2 तही थी। उस पर रंगीन धागों से खुशनुमा कशीदाकारी की गई थी और हाशिया गहरा सुर्ख था। सिरहाने बड़े बड़े दबीज तकिए थे। मज़ारी आगे बढ़ा, पलंग के ऊपर पहुंचा और पाँव फैलाकर इत्मीनान से बैठ गया। उसने दोनों पैरों के पंजों को जोड़कर एक दूसरे से मिलाया और घुटने समेटकर ऊंचे कर लिए। सरदार मज़ारी का एक कारदार चाकर खान सरगानी, जो शाहमीर से उसके साथ आया था, कमरे में पहले ही से मौजूद था। सरगानी के इशारे पर एक मुलाजिम आगे बढ़ा। उसके हाथ में खैरी थी। ये सफ़ेद लट्ठे का 2.5 गज लंबा टुकड़ा था। वो सरदार मज़ारी के करीब पहुंचा, झुका और निहायत एहतियात से खैरी उसकी कमर और घुटनों के गिर्द लपेटकर बगलबंदी की। फिर खैरी के दोनों सिरों का इस तरह दमोका लगाया कि आंखों के सिवा चेहरे का तमाम हिस्सा ढक गया। सरदार शहज़ोर खां मज़ारी जब कबायली रिवायत के मुताबिक इस तरह वलट मार कर बैठ गया तो मुलाजिम ने हुक्का ताज़ा करके पलंग के नज़दीक स्टूल पर रख दिया। सरदार उजला लिबास पहने हुए था।
उस पर इत्र लगा था जिसकी तेज़ खुशबू कमरे की फ़िज़ा में रची हुई थी। मज़ारी ने हुक्के की नय संभाली और आहिस्ता आहिस्ता कश लगाने लगा। कमरे के बाहर दालान और अहाते में दरख्तों के नीचे मज़ारे और कम्मी बैठे थे। उनमें बुज़गिर भी थे, ये भी मज़ारे थे, मगर उनका हक़ काश्तकारी मौरूसी था। मौरूसी मज़ारों को बलूचिस्तान में लट बस्ता कहा जाता है, मगर डेरा गाजी खान में भी पंजाब के दूसरे अजलाह की तरह वो मज़ारे या राहक कहलाते हैं। मज़ारे बुज़गिर और कम्मी सराइकी में बातचीत कर रहे थे, जिसमें बलोची और पंजाबी की आमेज़िश थी। उनमें शमशीर वाली के अलावा आसपास के ऐसे गांव और चक्कों के रहने वाले भी शामिल थे जो सरदार मज़ारी की जागीर में शामिल थे। वो अपने मुकदमे लेकर सरदार के पास फैसले के लिए आए थे। चाकर खान सरगानी बारी बारी हर मुकदमा पेश करता। किसी मुकदमे में मुद्दई और मुद्दा अलैह दोनों मौजूद होते, किसी में सिर्फ मुद्दई हाजिर होता। कमरे में जो भी दाखिल होता पेशानी तक हाथ उठाकर शहज़ोर खान मज़ारी को सलाम करता, ऊंची आवाज़ में कहता, साईं सदा जीवी, सुखी सेहत होए, खैर खैरियत होवे, रब राजी बाजी होए। ये दुआया जुमले अदा करता हुआ वो आगे बढ़ता, झुकता, सरदार के कदमों को छूकर पैर पवन करता और अदब से गर्दन झुकाकर मज़ारी के रूबरू खड़ा हो जाता। मज़ारी के चेहरे पर रौब और दबदबा था। वो हुक्के की नए होंठों से हटाकर भारी भरकम लहजे में मुकदमा पेश करने के लिए कहता, अपना दावा बयान कर। मुकदमा पेश किया जाता, वो पूरी तवज्जो से उसे सुनता। मुकदमात मुख्तलिफ़ किस्म के थे और बड़ी तादाद में फ़ौजदारी नौइयत के थे। उनमें ज़मीन की वटबंदी और पानी के तनाज़ात थे। कबाइल के पुरानी दुश्मनी के क़ज़िये थे। मियाँ बीवी, ससुर और दामाद के ख़ानगी झगड़े थे। सरदार शहज़ोर मज़ारी पहले मुद्दई का बयान सुनता, फिर मुद्दा अलैहा को सफाई पेश करने का मौका देता। फ़रीक़ैन अपने अपने गवाह पेश करते। बयानात और शहादतें सुनने के बाद सरदार शहज़ोर खान मज़ारी जिरह करता, हर नुक्ता और हर दलील समझने की कोशिश करता। कुछ देर खामोश बैठा मुकदमे के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करता रहता, फिर अपना फ़ैसला सुनाता। बाज़ मुकदमात में वो चाकर खान सरगानी से भी मशवरा करता, उसकी राय मालूम करता। अगर मशवरा काबिल कबूल होता तो उसकी रोशनी में फ़ैसला करता। मुकदमात का सिलसिला जारी था कि एक सारबान दाखिल हुआ। उसने दहलीज पर कदम रखते ही दुहाई दी, सरदार सदा जीवें, सही में लुट गया, सही में तबाह हो गया। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और सरदार के पैर पकड़कर ज़ारो कतार रोने लगा। मज़ारी ने रोबदार लहजे में उसे डांटा, सीधा खड़ा हो, रोना पीटना छोड़, अपना दावा बयान कर। सही मेरा नाम हातो है, जतवाल हूँ, पास की बस्ती में रहता हूँ। सही मेरा ऊँट चोरी हो गया। सारबान की आंखों से आंसू रवा थे। वो गिड़गिड़ा कर कहता रहा, सही सरदार, मैं ऊँट के बिना क्या कर सकता हूँ? मैं तो तबाह हो गया, मेरे बाली बच्चे भूखे मर रहे हैं। सही मेरा ऊँट मुझे वापस दिला दे, तू सुखी सेहत होवे, रब राजी होवे। तेरा ऊँट किसने चोरी किया? मज़ारी ने ऊंची आवाज़ में दरियाफ्त किया, तुझे किसी पर शुबा है? हाँ सही, शुबा है, बिल्कुल शुबा है। सारबान हाथों ने जल्दी जल्दी गर्दन हिलाई। सरदार ने गजबनाक होकर पूछा, कौन है वो? वो वस्ती बनी शाह में रहता है, उसका नाम लंगर है। हाथों ने मुस्तैदी से बताया, सही उसी ने मेरा ऊँट चोरी किया है, मुझे पता है उसी ने चोरी किया है। वैसे तो वो माछी है, पर चोरी चकारी उसका धंधा है। बिल्कुल मली मच्छी है, देखने में मच्छी, अंदर से सांप। चाकर, तू लंगर को जानता है? सरदार मज़ारी ने मुड़कर अपने कारदार को देखा, जो उसकी पुश्त पर बाअदब बामुलाहिजा खड़ा था। उसने निहायत अदब से जवाब दिया, हाँ सही, मैं लंगर को जानता हूँ, बाहर खड़ा है, मैंने उसे पहले ही बुलवा लिया था। लंगर को हाजिर किया जाए। मज़ारी ने हुक्म दिया, उसे अपनी सफाई पेश करने दी जाए। चाकर खान सरगानी ने फौरन लंगर को बुलवाया। ज़रा देर बाद एक कवी हैकल मछेरा कमरे में दाखिल हुआ।
वो ढीली ढाली कमीज के नीचे गहरे नीले रंग का मंझला बांधे हुए था। सर पर मलगजी पगड़ी थी। दाढ़ी और मूछों के बाल सख्त और घने थे। गर्दन तक बालों के लंबे लंबे स्याह पट्टे थे। आंखें बड़ी बड़ी और सुर्खी माइल थी। रंगत स्याह थी। उसने झुककर मजारी को अदब से सलाम किया, दुआ या जुमले कहे, कदम बोसी की और गर्दन झुकाकर एक तरफ खड़ा हो गया। सरदार शहजोर खान ने घूरते हुए दरियाफ्त किया, ये जतवाल कहता है तूने उसका ऊँट चोरी किया है, तुझे अपनी सफाई में क्या कहना है? लंगर ने एक हाथ से अपना कान पकड़ा, फिर दोनों गालों को हाथ से छूकर इनकार में गर्दन हिलाई। ना सही ना, मैं चोरी रस्सागिरी का धंधा नहीं करता। मैं नेक और भला बंदा हूँ। वस्ती बनी शाम में मुझे सब जानते हैं। उसने मुड़कर सारबान की तरफ देखा। सही सरदार, ये जतवाल बिल्कुल झूठा है। मेरे माथे पर बदनामी की कालक लगाना चाहता है। मैंने उसका ऊँट हरगिज़ चोरी नहीं किया। सही ये झूठ बोल रहा है। मैंने तो उसका ऊँट देखा भी नहीं। वो अपने साथ 2 गवाह भी लाया था। मजारी के हुक्म पर दोनों गवाह पेश किए गए। उन्होंने कसम खाकर लंगर के बयान की पूरी तायीद की। सारबान हाथों के इल्ज़ाम को झूठा और गुमराहकुन करार दिया। लंगर और उसके गवाहों के बयानात सुनने के बाद सरदार मजारी हाथों की जानिब मुतवज्जा हुआ। हाथों, तुझे किसी और पर तो ऊँट की चोरी का शुबा नहीं? ना सही ना, हाथों ने पूरे एतमाद से कहा, मुझे किसी और पर शुबा नहीं। मेरा ऊँट तो इसी ने चोरी किया है। उसने लंगर की जानिब हाथ उठाकर इशारा किया। यही रात के अंधेरे में मेरा ऊँट खोल कर ले गया। सरदार ने कहा, उसके तो गवाह हैं, तेरा भी कोई गवाह है? सही सरदार, मेरा कोई गवाह नहीं। सारबान ने आजिज़ी से कहा, मेरा गवाह तो खुदा है। उसने एक हाथ उठाकर आसमान की सिमत बुलंद किया। मैंने अपना ऊँट बनी शाम में लंगर के बाड़े में बंधा देखा था। सही, मैं पहले खोजी होता था। ऊँट के पाँव के निशानात से खुरा निकलता वस्ती बनी शाह पहुंचा था। निशानात उसके घर तक जाते थे। वहाँ ऊँट मौजूद था। मैंने उसे झट पहचान लिया। वो मेरा ही ऊँट था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। लंगर वहाँ मौजूद था? सरदार मुजारी ने दरियाफ्त किया। ना सही, लंगर वहाँ नहीं था। दरिया के किनारे अपनी बेड़ी में बैठा था। हाथों ने जवाब दिया। मैं उसके पास पहुंचा, अपने ऊँट के बारे में उसे बताया। लंगर ने तुझसे क्या कहा? मजारी ने जिरह करने के अंदाज में पूछा। उसने झूठ बोला, साफ इनकार कर दिया। तूने उसके खिलाफ थाने में पर्चा चाक कराया था? सरदार ने इस्तफसार किया। ना सही, मैंने ऐसा नहीं किया। पर्चा चाक कराने के लिए पुलिस की मुट्ठी गर्म करनी पड़ती है। मैं गरीब जतवाल हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसकी आवाज़ गुलूगीर हो गई। गरीब की फरियाद पुल से कहाँ सुनते हैं? सही सरदार, मेरा ऊँट तू ही दिलवाएगा। तू सरदार है, इंसाफ करने वाला है। मेरा फैसला तू ही करेगा। मैंने किसी और के पास नहीं जाना। जब तूने लंगर के बाड़े में अपना ऊँट फेंक लिया था तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? मजारी ने कुरेद कर पूछा। मेरा मतलब है, तू अपना ऊँट खोल कर क्यों नहीं ले आया? सही, मैं बिल्कुल अकेला था। लंगर मुझसे तगड़ा और जोरावर है। हाथों ने वजाहत की। मैंने पहले लंगर से पूछताछ की। जब उसने साफ इनकार कर दिया तो वापस अपनी वस्ती गया। रात को अपने मामा के पुत्र और 2 जतवालों को लेकर दोबारा बनी शाह पहुंचा। तब लंगर अपने घर पर मौजूद था, पर ऊँट गायब था। तूने आगे क्या किया? मजारी ने दरियाफ्त किया। मैंने पता चलाया। मालूम हुआ लंगर ने शाम का अंधेरा होते ही ऊँट कोटली जाफर पहुंचा दिया। हाथों ने मजारी को बताया। मैं कोटली जाफर पहुंचा, पर मेरे वहां पहुंचने से पहले ही उसने ऊँट बेड़ी में बिठाकर दरिया पार पहुंचा दिया। लंगर तिलमिलाकर बोला, सही सरदार, ये साफ झूठ बोल रहा है।
चुप कर, खामखा टुर टुर ना कर। सरदार मजारी ने लंगर को गुस्से से डांटा। जब तुझे कहा जाए तब बोलना। वो सारबान की जाने मुतवज्जा हुआ। हाँ तो बाद में तूने अपने ऊँट का खोज नहीं निकाला? तुझे पता है तेरा ऊँट अब कहाँ है? सही सरदार, मुझे सिर्फ इतना पता है, मेरा ऊँट रहीम यार खां में है। सारबान आजिज़ी से बोला। किस बस्ती में है, कहाँ है, मुझे कुछ पता नहीं। मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूँगा। तू सरदार है, तू जमशेर है, तुझसे मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? सरदार मजारी चंद लम्हे खामोश रहकर लंगर से मुखातिब हुआ। लंगर, अब तू बता, तूने हाथों का ऊँट अगर चोरी नहीं किया तो ये तुझ पर चोरी का इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है? तेरे सिवा उसे किसी और पर शुबा भी नहीं, ऐसा क्यों है? सही सरदार, गाल असली ये है। लंगर ने मजारी को बताया। उसकी चाची मेरी छटील है। मैंने उसे तलाक दी और जब वो छुटील हो गई तो उसके चाचा से उसने निकाह कर लिया। मेरी वही छुटील अब इसे और इसके चाचा को मेरे खिलाफ भड़काती है। मेरी इसकी यही दुश्मनी है और पिछले 1 साल से है। उसने मुड़कर हाथों को देखा। इससे पूछ ले सरदार, मैंने तुझसे झूठ नहीं बोलना। लंगर ठीक कह रहा है? सरदार मजारी ने हाथों से पूछा। मेरी चाची पहले इसकी जाल होती थी, ये तो उसने ठीक ही बताया, पर ऊँट की चोरी से उस मामले का क्या मेल? हाथों ने अपनी बात पर जोर देकर कहा। मैं तो अपने चाचा के घर बहुत कम जाता हूँ। मेरी चाची जो अब इसकी छुटील है मुझे ज़रा पसंद नहीं। वो ज़बरदस्त झगड़ालू रन है, मुझसे भी कई बार झगड़ा टुंटा कर चुकी है। मैं तो पिछले 6-7 महीने से उसके घर गया ही नहीं। उसने लंगर की जानिब हाथ उठाकर इशारा किया। साईं, ये बकवास कर रहा है। मेरा ऊँट इसी ने चोरी किया है, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ। मेरा ऊँट इसने रहीम यार खां में कहीं छुपा दिया है या किसी के हाथ बेच दिया। वो गिड़गिड़ा कर फरियाद करने लगा। सही सरदार, मेरा ऊँट मुझे दिला दे, मैं तबाह हो गया, मैं लुट गया। उसकी आवाज़ भर्रा गई, आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे। लंगर ने हाथों को इस तरह ज़ारो कतार रोते देखा तो नरम लहजे में बोला। सही सरदार, मैं ये नहीं कहता उसका ऊँट चोरी नहीं हुआ, पर मैंने उसे नहीं चुराया। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरे गवाहों से पूछ ले। सरदार मजारी ने लंगर को नज़रअंदाज करते हुए हाथों से पूछा। तेरा मलीर और दोनों जतवाल जो तेरे साथ वस्ती बनीशा और कोटली जाफर गए थे और जिन्होंने तेरे ऊँट के बारे में सुना भी था, उनकी तूने गवाही क्यों नहीं पेश की? सही, उन्होंने ऊँट देखा नहीं। उसे तो लंगर ने पहले ही बेड़ी में बिठाकर दरिया पार पहुंचा दिया था। हाथों ने वजाहत की। ऐसे में वो क्या गवाही दे सकते हैं? हाँ, वो इसकी ज़रूर गवाही दे सकते हैं कि मेरे साथ वस्ती बनीशा और कोटली जाफर गए थे। सही, तू हुक्म कर तो मैं उनसे उसकी गवाही दिलवा दूं। नहीं, ऐसी गवाही से काम नहीं चलेगा। सरदार मजारी ने इख्तिलाफ राय किया। हाँ, किसी ने लंगर को तेरा ऊँट चोरी करते देखा हो, उसकी गवाही तू पेश कर सकता है। ना सही, मेरा ऐसा कोई गवाह नहीं। तभी तो मैंने तुझे पहले ही साफ साफ कह दिया था, मेरा कोई गवाह नहीं। हाथों ने अपनी मजबूरी का इजहार किया। सही सरदार, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूँगा, ना तेरे सामने झूठे गवाह पेश करूँगा। मजारी ने कुछ न कहा, नजरें झुकाकर गहरी सोच में डूब गया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। रहीमदाद भी सरकंडों के बने हुए मोंडे पर बुत बना खामोश बैठा था और मुकदमे की कार्रवाई देख रहा था। मुकदमा खासा पेचीदा था। रहीमदाद ये समझने से कासिर था कि क्या फैसला होना चाहिए। कुछ देर खामोश रहने के बाद सरदार शहजोर खान मजारी ने चाकर खां सरगानी को मुखातिब किया। चाकर, मुकदमा तो कुछ उलझा हुआ है, तू कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। सही सरदार, ऊँट की चोरी का हाथों के पास कोई पक्का सबूत नहीं है, ना उसका कोई गवाह है ना शहादत,
लिहाजा हाथों का दावा खारिज किया जा सकता है। चाकर खां सरगानी ने नहायत अदब से अपना मौक़िफ़ पेश किया। वैसे मेरी ज़ाती राय यह है कि जरगा बुलाया जाए और मोतबरों के सामने मुकदमा पेश कर दिया जाए। जरगा जो फैसला करेगा वही आखिरी फैसला होगा। हाथों तड़प कर बोला, ना सही, जरगा नहीं, मेरा फैसला तो सरदार ही करेगा। वो बच्चों की तरह मचल कर जिद करने लगा, सही, तू ही उठ दिलवा सकता है, मेरा फैसला तू ही करेगा। मैं ही फैसला करूंगा, पर आज नहीं, 4 रोज बाद। सरदार मजारी ने मुड़कर चाकर खान को देखा। चाकर, यह मुकदमा इतना अहम नहीं कि इसके लिए जरगा बुलाया जाए। वो हाथों और लंगर की जानिब मुतवज्जा हुआ। कचहरी बर्खास्त की जाती है। तुम सबको 4 रोज बाद फैसले के लिए हाजिर होना होगा। चाकर खान तुमको इसके बारे में बता देगा। अदालत बर्खास्त होते ही कमरा खाली हो गया। चाकर खान ने बढ़कर मजारी की कमर और टांगों से लिपटी हुई खेरा की गिरा खोल दी। मजारी पलंग से नीचे उतरा और रहीमदाद के हमरा बाहर चला गया। जून की सुनसान दोपहर थी। हर तरफ तेज और चमकीली धूप फैली थी। हवा गर्म थी, मगर कच्ची ईंटों से बनी हुई ऊंची ऊंची दीवारों वाले कमरे में कदर ठंडक थी। रहीमदाद और शहजोर खान मजारी खाना खा रहे थे। रहीमदाद बिल्कुल खामोश था। उसकी आंखें सोचती हुई नजर आ रही थीं। बुशरे से उलझन झलकती थी। सरदार मजारी ने उसके चेहरे को कई बार नजर भर कर देखा, लेकिन वो ज्यादा देर रहीमदाद की ये कैफियत बर्दाश्त न कर सका। मुस्कुरा कर बोला, सईं चौधरी, तू किस सोच में पड़ गया? खैर खैरियत तो है? रहीमदाद ने निगाहें उठाकर शहजोर खान की जानिब देखा, मगर जबान से एक लफ्ज न निकाला। गर्दन झुकाकर बदस्तूर खाना खाता रहा। मजारी ने कुरैद कर पूछा, तू इस तरह चुप करके क्यों बैठा है? वो खुलकर मुस्कुराया, लगता है तू अब यहां से उकता गया, वापस जाना चाहता है, चला जाना, मुझे भी इधर ज्यादा दिन नहीं ठहरना। वापस तो मैंने जाना ही है। तुझे पता है उधर लाहौर में शाहजी का मैनेजर मेहरबान अली मेरा इंतजार करता होगा। शाहजी भी अब तक कराची से आ गया होगा, उसे मिलना भी है। रहीमदाद ने वजाहत की, पर अभी तो मैं कुछ और ही सोच रहा था। उसने सवालिया नजरों से सरदार मजारी के चेहरे को देखा। तुझे कल सुबह ऊंट की चोरी के मुकदमे का फैसला करना है ना? वो तो मैंने करना ही है, पर तू इतना परेशान क्यों है? परेशानी की गल बात नहीं। इस बार रहीमदाद मुस्कुरा कर बोला, सोच रहा था तू फैसला किस तरह करेगा। चोरी का ना कोई सबूत है और न शहादत। उसने गिलास उठाकर पानी का घोंट भरा। हाथों की बातों से साफ पता चलता है कि उसका ऊंट तो चोरी हुआ है और उसे सिर्फ लंगर ही पर शुबा है। लंगर के बारे में तेरा क्या ख्याल है? सरदार शहजोर मजारी ने उसके अंदिया लेना चाहा। उसके तो 2 गवाह भी हैं। रहीमदाद ने अपनी राय का इजहार किया। बयान भी उसका ठीक ठाक लगता है, बात भी कड़क कर करता है। उसके चेहरे पर एक बार फिर उलझन नजर आने लगी। मान ले उसने हाथों का ऊंट चोरी भी किया है, तब भी तू उसके खिलाफ सबूत कहां से लाएगा? कल सवेरे तू खुद ही देख लेना। सरदार मजारी ने बेनियाजी से हल्का कहका लगाया। लंगर ने चोरी की है तो उसका सबूत भी मिल जाएगा, सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। अपनी समझ में तो कुछ आया नहीं, जाने तूने क्या सोचा है? चौधरी सच पूछ। सोचा तो मैंने भी कुछ नहीं, पर मुकदमे का फैसला तो करना ही है। सरदार मजारी ने साफगोई से काम लिया। ऐसे पेचीदा और उलझे हुए मुकदमों का हमारे वडेरे और बुजुर्ग बहुत ठीक तरह फैसला करते रहे हैं। हम बलोचों का अपना कानून है और साल हा साल से राइज है। हर बलोच उसे मानता है, तस्लीम करता है। कल सुबह मैं बलोचों के उसी रवायती कानून की रूह से फैसला करूंगा। क्या फैसला करेगा और कैसे करेगा? रहीमदाद ने हैरतज़दा नजरों से सरदार मजारी को देखा। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया, बेनियाजी से बोला, तू मौजूद ही होगा, देख लेना कितना ठीक और सही फैसला होगा।
सारा झूठ सच खुलकर सामने आ जाएगा। लंगर ने चोरी की होगी तो उसे अपने जुर्म की पूरी पूरी सजा मिलेगी, वरना साफ बरी हो जाएगा। रहीमदाद ने मजीद इस्तफसार न किया, खामोशी से खाना खाता रहा, मगर उसके जहन में खलबली मची थी, चेहरे से बेचैनी झलकती थी, आंखों में दबा दबा तजस्सुस था। सरदार मज़ारी ने उसकी जहनी कैफियत पर तवज्जो ना दी, खाने से फारिग हुआ और उठकर अपने कमरे में आराम करने चला गया। रहीमदाद भी कुछ देर बाद कैलूला करने की गरज से बिस्तर पर दराज हो गया। दिन ढले रहीमदाद बेदार हुआ, कमरे से बाहर निकला, देखा इहाते के एक गोशे में घने दरख्तों तले दो नौकर एक बोसीदा तीर और कमान रगड़ रगड़ कर साफ कर रहे थे। कमान बांस की ढाई चौड़ी और मजबूत खपची की बनी हुई थी, उसका रंग उड़ गया था, उसमें बंधी हुई तांत भी ढीली पड़ गई थी। नौकर चर्बी मल कर कमान को चमका रहे थे। तांत पर भी उन्होंने इस तरह चर्बी मली थी कि अब उसमें तनाव पैदा होता जा रहा था। तीर खुजंग की मजबूत लकड़ी तराश कर बनाया गया था, उसकी तेज नोक लोहे की थी, मगर उसकी चमक दमक भी मांद पड़ चुकी थी। उसे सरसों के तेल में भीगी हुई रेत से आहिस्ता आहिस्ता रगड़ कर चमकाया जा रहा था। करीब ही चाकर खान सरगानी खड़ा था। रहीमदाद आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सरगानी के करीब पहुंच गया। सरगानी ने ऊंची आवाज़ से उसे सलाम किया। रहीमदाद ने तीर और कमान की जानिब उंगली से इशारा करते हुए दरियाफ्त किया, चाकर खान, ये कहाँ से लाया? सईं, मैं सरदार के हुक्म पर शामीर गया था, उसे कोर्ट से लाया हूँ। चाकर खान सरगानी ने रहीमदाद को बताया, कल मुकदमे का फैसला करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मुकदमे से तीर कमान को क्या लेना? रहीमदाद ने हैरत से आंखें फाड़ कर पूछा। सरगानी खुलकर मुस्कुराया, सईं, कल सुबह तू खुद ही देख लेना। सरदार शहजोर खां मज़ारी भी टहलता हुआ वहां आ गया। उसने तीर कमान को देखा, चाकर खां से पूछा, तू उसे ले आया? हाँ सरदार, सरगानी ने निहायत मुस्तैदी से जवाब दिया। अब उसे ठीक ठाक करवा रहा हूँ। तूने इसे पहले नहीं देखा, बहुत ख़राब और रद्दी हालत थी इसकी। मज़ारी ने चाकर खां सरगानी से मज़ीद बातचीत नहीं की। चंद लम्हे खामोश खड़ा तीर कमान देखता रहा, जिसे दोनों नौकर अब ज्यादा तनदही से रगड़ रगड़ कर चमकाने की कोशिश कर रहे थे। सरदार मज़ारी आगे बढ़ा और रहीमदाद के हमरा एक तरफ चला गया। रहीमदाद की उलझन में और इजाफा हो गया, मगर उसने शहजोर खां मज़ारी के सामने अपनी उलझन का इजहार नहीं किया। उसने मुकदमे के बारे में मज़ीद गुफ्तगू ही न की, मगर रात तजस्सुस और बेचैनी के आलम में कटी। मज़ारी ने खिलाफ तवक्को अपनी क़यामगाह के बजाय दरिया के साहिल पर कचहरी लगाई। कचहरी के लिए एक ऊंचे रेतीले तोदे को मुंतखब किया गया, जिस पर एक घने दरख्त का साया था। बुलंदी पर तोदे की सतह हमवार थी, उसे साफ करके गालीचा बिछाया गया। सरदार मज़ारी उस पर वलेट मार कर बैठ गया। रहीमदाद भी उसके हमरा था, मगर वो तोदे के ऊपर न गया। वहाँ सिर्फ सरदार शहजोर खां मज़ारी था। वो इत्मीनान से बैठा हुक्के पर आहिस्ता आहिस्ता कश लगा रहा था। तोदे के नशेब में चाकर खां सरगानी एक तरफ अदब से गर्दन झुकाए खामोश खड़ा था। सरदार मज़ारी के ऐन सामने हाथों था। ज़रा हटकर लंगर खां अपने दोनों गवाहों के साथ नजरें नीचे किए सहमा हुआ खड़ा था। गांव के तमाम बड़े बूढ़े और जवान भी मौजूद थे। वो नीम दायरे में रेतीली ज़मीन पर बैठे थे। हर शख्स गुमसुम था और सरदार मज़ारी के दबदबे से मरूब नजर आता था। कुछ ही फासले पर दरियाए सिंध बह रहा था। पहर दिन गुजर चुका था। दरिया की तेज़ और तुंद लहरें उमड़ रही थीं, मचल रही थीं, धूप से झिलमिला रही थीं। शहजोर खान मज़ारी ने हुक्के की नए एक तरफ की, खनकार कर गला साफ किया। लंगर खान की जानिब नजरें उठाकर गोया हुआ, लंगर, तूने अपनी सफाई में कुछ और कहना है? उसके लहजे में रोब और दबदबा था। लंगर ने नजरें बुलंद की, हाथ बांधकर आजिज़ी से बोला, सही सरदार, मुझे अपनी सफाई में जो कुछ कहना था पहले ही कह चुका। मैंने अब और कुछ नहीं कहना। तू ये कहना चाहता है कि तूने हाथों जतवाल का ऊँट चोरी नहीं किया? तूने अपने बयान में यही कहा था ना?
हाँ सही, मैंने यही कहा था। एक बार फिर कहता हूँ, मैंने हाथों का ऊँट चोरी नहीं किया। उसने हाथ उठाकर अपने कान पकड़े और इनकार में हौले हौले गर्दन हिलाने लगा। सही सरदार, मैंने तुझसे झूठ नहीं बोलना। तू मालिक है, मैं तेरा गुलाम हूँ, बान्हा हूँ। मैं तेरे सामने कैसे झूठ बोल सकता हूँ? तूने अगर हाथों का ऊँट चोरी नहीं किया तो तेरे पास इसका क्या सबूत है? सरदार शहजोर खां मजारी ने जिरह करने के अंदाज में दरियाफ्त किया। सही, सबूत तो इसे पेश करना चाहिए। उसने हाथों की जानिब हाथ से इशारा किया। उसके पास क्या सबूत है कि मैंने उसका ऊँट चोरी किया? सही सरदार, तू राजी बाजी होवी, सुखी सेहत होवी, तेरे बाली बच्ची डैडी पर्दे सब की खैर होवी। हाथों गिड़गिड़ा कर फरियादी हुआ। सही, मेरा ऊँट लंगर ही ने चोरी किया है, यह झूठ बोल रहा है। मैंने अपना ऊँट इसके घर के आगे अपनी आंखों से बंधा हुआ देखा था। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बकवास ना कर, सबूत पेश कर, लंगर खान ने डपट कर कहा। सरदार मजारी को इसका रवैया सख्त नागवार गुजरा। उसकी तीवरी पर बल पड़ गए। कड़क कर बोला, लंगर। इसके लहजे से बरहमी टपक रही थी। इसका ऊँट भी चोरी हुआ और यही सबूत भी पेश करे? ऐसा नहीं हो सकता। इसका तो कोई गवाह भी नहीं। लंगर ने नरम लहजे में एक बार फिर अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। मेरे तो 2 गवाह मौजूद हैं। सरदार मजारी ने इसकी दलील रद्द कर दी। तूने जो गवाह पेश किए उनके बयानात से ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि तूने हाथों का ऊँट चोरी नहीं किया। मजारी ने उसे तीखी नज़रों से देखा। तुझे दरिया में गोता लगाकर अपनी बेगुनाही का सबूत देना होगा। ये बलोचों की पुरानी रीत है, ये उनका अपना कानून है। इस मुकदमे का फैसला इसी कानून की रूह से होगा। उसने कदरे तामुल किया। तुझे बलोचों के इस कानून का पता है? हाँ सरदार, मुझे पता है, बिल्कुल पता है। लंगर खान ने नजरें उठाकर सरदार मजारी को देखा, मगर उसके चेहरे से परेशानी झलक रही थी। उसने एक बार फिर दोनों हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाने लगा। सही सरदारा, मैंने हाथों का ऊँट चोरी नहीं किया। मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। तू सच्चा है तो डरता क्यों है? शहजोर खां मजारी ने डपट कर कहा। तेरी सच्चाई का अभी इम्तिहान हो जाएगा, सारा झूठ सच सामने आ जाएगा। सही, तुझे मेरे बयान पर यकीन नहीं तो मेरे गवाहों से पूछ ले। लंगर खां ने आजिज़ी से कहा। तू उन पर जैसी चाहे जिरह कर ले। बकवास बंद कर, सरदार मजारी ने उसे झड़क दिया। या तो ये मान के ऊँट तूने चोरी किया है, वरना पक्का सबूत देने के लिए तैयार हो जा। तू अगर सच्चा है तो हंसता मुस्कुराता पानी से बाहर आ जाएगा। उसने गहरी नजरों से लंगर खां को देखा। बोल, क्या कहता है? सही सरदार, मैं तैयार हूं। लंगर खां आमादा हो गया। मैं दरिया में गोता लगाकर अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करूंगा। शाबाश, है तू माछी पर खरा बलोच लगता है। सरदार मजारी खुश होकर बोला। सही, मेरे पुरखे और वडेरे माछी नहीं थे। लंगर ने अपने बलोच होने के बारे में मजारी को यकीन दिलाने की कोशिश की। वो आजड़ी होते थे, उनके पास शानदार घोड़े थे, बहुत वड्डा गलग होता था। ये बता, तेरा मददगार कौन होगा? लंगर ने अपने एक गवाह की तरफ हाथ उठाकर कहा। सही, ये जलावत मेरा मददगार बनेगा। ठीक है। मजारी मुड़कर चाकर खां सरगानी की जानिब मुतवज्जा हुआ। चाकर, तीर कौन छोड़ेगा? नौगीर, सरगानी ने ऊंची आवाज से पुकारा। रेत पर बैठे हुए अफराद ने नजरें घुमा फिराकर एक दूसरे को देखा। एक नौजवान उठकर खड़ा हो गया। उसका कद ऊंचा था, छाती कुशादा थी, बाजू मजबूत थे। सरगानी ने उसकी जानिब इशारा करते हुए शहजोर खान मजारी को मुतला किया। सही सरदार, मैंने इसे तीर छोड़ने के लिए तैयार किया है। मजारी ने नौगीर को नाकिदाना नजरों से देखा, हाथ उठाकर बोला।
نوگیر آگے آ جا۔ نوگیر خان بڑھ کر آگے آ گیا اور سردار مزاری کے روبرو نظریں جھکا کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ مزاری نے چاکر خان سرگانی کو حکم دیا، چاکر اسے تیر کمان دے دے۔ اس نے گردن موڑ کر لنگر خان کی جانب دیکھا۔ لنگر اب تو دریا میں اتر جا، جب میں ہاتھ اٹھاؤں تو ٹھہر جانا۔ نوگیر کے تیر چھوڑتے ہی پانی کے اندر غوطہ مارنا۔ لنگر خان نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے پگڑی اور قمیص اتار کر ایک طرف ریت پر رکھی، پیروں سے جوتے اتارے اور کپڑوں کے قریب ہی رکھ دیے۔ اس کے چہرے پر گہرا سکوت طاری تھا۔ وہ دریا کی جانب بڑھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا پانی میں اتر گیا۔ وہ ٹھہرا نہیں، آگے اور آگے بڑھتا گیا۔ پانی جب اس کے سینے سے بھی اوپر پہنچ گیا تو مزاری نے اپنا ہاتھ بلند کیا، اونچی آواز سے کہا، ٹھہر جا لنگر۔ لنگر خان رک گیا۔ دریا کی متلاطم موجوں کے درمیان اس کا سر ابھرا ہوا تھا، بقیہ جسم پانی کے اندر تھا۔ وہ کنارے سے خاصے فاصلے پر تھا اور گردن موڑے سردار شہزور خان مزاری کی سمت ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ سردار مزاری نے نوگیر خان کو اشارہ کیا، وہ آگے بڑھا۔ کمان چاکر خان سرگانی سے لے کر کندھے پر لٹکائی، تیر ہاتھ میں سنبھالا اور کھلے میدان میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا سانولا چہرہ دھوپ کی تمازت سے تمتما رہا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھا، اس کی نظریں بھی شہزور مزاری کی جانب اٹھی تھیں۔ لنگر خان کے مددگار جلاوت نے جھٹ اپنی قمیص اور پگڑی اتاری، پیروں سے جوتے علیحدہ کیے، شلوار کے پائنچے گھٹنوں سے اوپر کیے اور اس کا گھیر نیفے میں اڑس لیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا نوگیر کے نزدیک پہنچ گیا۔ اب وہ نہایت مستعد اور چاق و چوبند نظر آ رہا تھا۔ نوگیر نے تیر چلے پر چڑھایا، سب کی نظریں اس کی جانب اٹھی تھیں۔ نوگیر گردن کو خم دے کر چوکنا نگاہوں سے سردار مزاری کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے اشارے کا منتظر تھا۔ جلاوت دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے چوکس کھڑا تھا۔ دریا کی مچلتی لہروں کے اوپر لنگر خان کا سر صاف نظر آ رہا تھا۔ سورج کی تیز کرنیں اس کے چہرے پر جھلملا رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے پریشانی عیاں تھی۔ وہ گہری گہری سانسیں بھر رہا تھا، کبھی سردار مزاری کی جانب دیکھتا، کبھی نوگیر کے ہاتھوں میں دبی کمان کو۔ ہر طرف گہرا سکوت طاری تھا۔ دھوپ کی تمازت بڑھ گئی تھی۔ سردار مزاری مسند پر خاموش بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ تودے کے نشیب میں گاؤں کے بڑے بوڑھے اور جوان بیٹھے تھے، سب دم بخود تھے۔ رحیم داد حیران اور پریشان نظروں سے مزاری کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے سردار شہزور خان مزاری نے ہاتھ اٹھا کر نیچے کیا۔ نوگیر خان کو سگنل ملا۔ اس نے کمان کو پوری قوت سے کھینچا اور چھوڑ دیا۔ تیر چلے سے نکلا اور تیزی سے فضا میں سنسناتا ہوا چلا۔ لنگر خان نے اپنی ناک انگلیوں سے دبائی اور جھٹ ڈبکی لگائی۔ وہ پانی کے اندر چلا گیا۔ جلاوت تیر پر نظریں جمائے سرپٹ دوڑا۔ تیر درختوں کی اوٹ میں غائب ہو گیا۔ اس کے تعاقب میں دیوانوار بھاگتا ہوا جلاوت بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ سب کی نظریں اسی سمت اٹھی تھی جدھر جلاوت گیا تھا۔ دریا گنگناتا ہوا بہتا رہا۔ ہوا کے تھپیڑوں سے پانی میں ہلچل پیدا ہوتی، بار بار لہریں اٹھتی اور کناروں سے ٹکرا کر بکھر جاتی۔ آخر جلاوت درختوں کے ایک جھنڈ کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ تیر اس کے ہاتھ میں دبا تھا۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا قریب آیا اور ریتیلے تودے پر چڑھ کر اوپر پہنچ گیا۔ اس نے تیر مزاری کے سامنے ڈال دی، لڑکھڑایا اور مزاری کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی سانس دھونکنی کی طرح چل رہی تھی۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ سردار شہزور خان مزاری نے تیر مٹھی میں دبا کر ہاتھ بلند کیا، اونچی آواز سے کہا، لنگر اپنا سر پانی سے باہر نکال۔ جلاوت تیر لے کر آ گیا، تیرا امتحان ختم ہو گیا۔ مگر لنگر خان کا سر پانی سے باہر نہ نکلا۔ ہر نگاہ دریا کی جانب اٹھی تھی۔ ہر طرف گہرا سکوت طاری تھا۔ سردار مزاری نے زیادہ اونچی آواز سے لنگر کو پکارا۔ اس بار بھی نہ پانی میں ہلچل ہوئی، نہ لنگر خان کا سر لہروں کے درمیان ابھرا۔ شہزور خان مزاری نے تیسری بار لنگر خان کو پکارا۔ اس کی آواز زیادہ اونچی اور گرجدار تھی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ کوئی نہ بولا، سب خاموش تھے، دم بخود تھے، مڑ مڑ کر دریا کی جانب دیکھتے تھے۔ انہیں لنگر خان کی تلاش تھی، مگر اس کا سر پانی سے نہ ابھرا۔
مزاری کے حکم پر غوطہ خور پانی میں اترے، دور دور تک تیرتے ہوئے گئے، جگہ جگہ غوطے لگائے، لیکن لنگر خاں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ سردار مزاری ویلٹ مارے بیٹھا تھا، اس کے دونوں ٹانگوں کے گرد خیری لپٹی ہوئی تھی، وہ بالکل خاموش تھا، حقے کی نئے ہونٹوں سے لگائے آہستہ آہستہ کش لگا رہا تھا، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی تھی۔ دریائے سندھ پرسکون تھا، وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، سورج چڑھ کر آسمان کے بیچوں بیچ پہنچ گیا، دھوپ کی تمازت بڑھ گئی تھی، مگر درختوں کے نیچے ابھی تک ٹھنڈک تھی۔ دریا کی جانب سے آتے ہوئے بھیگے بھیگے جھونکے خوشگوار اور فرحت بخش تھے۔ ذرا دیر بعد سردار مزاری نے حقے کی نئے ہاتھ سے ایک طرف کی، کھنکار کر گلا صاف کیا، حاضرین کو مخاطب کیا، لنگر اگر ڈوب کر مر گیا تو اس کی لاش اب تک ابھر کر پانی کے اوپر آ جانا چاہیے تھی۔ اس نے قدر تأمل کیا، میں نے غلط تو نہیں سوچا؟ سامنے نیم دائرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک بوڑھے نے اس کی تائید کی، ہاں صحیح، اب تک اس کی لاش پانی پر آ جانا چاہیے تھی۔ ایک اور آواز ابھری، صحیح سردار، تو نے بالکل ٹھیک سوچا۔ مزاری نے اس بار کھل کر اپنے شک کا اظہار کیا، لگتا ہے وہ پانی کے اندر ہی اندر تیرتا ہوا کسی طرف نکل گیا، وہ ماچھی ہے، زبردست تارا اور تیراک ہے، وہ بالکل ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے چہرے سے جھنجھلاہٹ جھلکنے لگی، پر وہ بھاگ کر نہیں جا سکتا۔ اس نے مڑ کر چاکر خان سرگانی کی جانب دیکھا، چاکر، بیڑیاں لنگر کو ڈھونڈنے کے لیے روانہ کر، ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ اس کا لہجہ تحکمانہ تھا، لنگر کو گرفتار کیا جائے اور فوراً پیش کیا جائے۔ حکم ملتے ہی چاکر خان سرگانی نے ملاحوں کو ہدایت جاری کی کہ وہ لنگر خان کو تلاش کریں اور جیسے بھی ممکن ہو پکڑ کر سردار مزاری کے روبرو پیش کریں۔ فوراً 5 کشتیاں لنگر خان کی تلاش میں مختلف سمتوں کو روانہ ہو گئیں۔ دیکھتے دیکھتے کشتیاں دریا کی سطح پر دھبوں کی مانند نظر آنے لگی، پھر وہ لہروں پر ڈولتی ہچکولے کھاتی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کشتیوں پر بیٹھے ہوئے ملاح چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، لنگر خان کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ پتواروں پر تیزی سے چل رہے تھے، سانولے جسم دھوپ سے چمک رہے تھے۔ وہ بار بار ہاتھ اٹھا کر پیشانیوں پر آئے ہوئے پسینے کے قطروں کو پہنچتے اور زیادہ مستعدی سے کشتیوں کو آگے اور آگے بڑھاتے۔ نشیب میں لگ بھگ 3 میل آگے، جہاں دریا نیم دائرہ بناتا ہوا مغرب کی جانب مڑتا تھا، ایک کشتی کے ملاحوں کو دور سے جھاڑیوں سے الجھا ہوا گہرا نیلا منجھلا نظر آیا۔ جھاڑیاں دریا کے کنارے تھی اور پانی میں ڈوبی ہوئی تھی، منجھلا شاخوں سے الجھا ہوا تھا اور ہوا کے تھپیڑوں سے پھڑپڑا رہا تھا۔ ملاحوں نے فوراً کشتی موڑی اور جھاڑیوں کی جانب بڑھے۔ قریب پہنچ کر انہوں نے دیکھا، نیلے منجھلے کے ساتھ ہی ایک گھنی شاخ میں لنگر خان کی لاش پھنسی ہوئی تھی اور پانی پر ادھر ادھر ڈول رہی تھی۔ لاش بالکل براہنا تھی۔ ملا جھٹ کشتی سے پانی میں اترے، تیرتے ہوئے لاش کے قریب پہنچے، اسے گھنی شاخ سے علیحدہ کیا اور کشتی میں ڈال دیا۔ نیلا منجھلا جسے پانی میں ڈبکی لگاتے وقت لنگر خان باندھے ہوئے تھا، اب ملاحوں کے ہاتھ میں دبا تھا۔ انہوں نے منجھلا لنگر خان کی برہنہ لاش پر ڈال دی اور کشتی تیزی سے کھیتے ہوئے شمشیر والی کی سمت بڑھے۔ کشتی منزل مقصود پر پہنچی، کنارے لگائی گئی، لنگر خان کی لاش اتاری گئی اور سردار شہزور خان مزاری کے روبرو ریتیلی زمین پر رکھ دی گئی۔ منجلا ہٹا کر اس پر ایک ملگجی سفید چادر ڈال دی گئی۔ سردار مزاری نے لنگر کی لاش غور سے دیکھی مگر خاموش بیٹھا رہا۔ کچہری ابھی برخاست نہیں ہوئی تھی۔ تودے کے نشیب میں ہاتھوں کھڑا تھا، ذرا ہٹ کر جلاوت اور لنگر خان کا دوسرا گواہ خمیسوں کھڑا تھا۔ ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، وہ سہمے ہوئے نظر آ رہے تھے، ان کے چہروں سے خوف اور پریشانی جھلک رہی تھی۔ رحیم داد ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے ریت پر بچھی ہوئی چٹائی پر گم سم بیٹھا تھا۔ وہ پھٹی ہوئی نگاہوں سے بار بار لنگر خان کی لاش دیکھتا جو ریت پر پڑی تھی۔ جس چادر سے لاش ڈھکی تھی وہ ہوا کے جھونکوں سے ہولے ہولے تھرتھرا رہی تھی۔ لنگر خان کی موت سے رحیم داد خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے اور خدشات کلبلا رہے تھے، لیکن سردار مزاری کے چہرے پر گھبراہٹ یا پریشانی کے کوئی آثار نہ تھے۔ لاش کے پہنچنے کے تھوڑی ہی دیر بعد مقدمے کی کارروائی جو معطل ہو گئی تھی دوبارہ شروع ہو گئی۔
मज़ारी ने लंगर खां के लाश की जानिब हाथ उठाकर अपना फैसला सुनाया। वो ऊंची आवाज़ से संभल संभल कर बोल रहा था। सबको पता है कि लंगर माछी था। माछी होने के साथ साथ वो बहुत अच्छा तैराक भी था। सच्चा और बेगुनाह होता तो मेरी पहली ही पुकार पर पानी से बाहर निकलकर हंसता मुस्कुराता सबके सामने आ जाता, पर वो झूठा और चोर था, तब ही डूब कर मर गया। उसे मरना ही था। उसने हाथों का ऊँट चोरी किया था, उसे इसकी सज़ा मिल गई। उसने हाथ उठाकर आसमान की जानिब इशारा किया। सच पूछो तो उसका फैसला ऊपर वाले ने किया। एक बूढ़े ने, जो वज़ाक़ता से गांव की मस्जिद का मुल्ला नजर आता था, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए ऊंची आवाज़ से कहा, साईं सरदार, तूने बिल्कुल सच कहा। असली फैसला तो अल्लाह ताला ही की जानिब से होता है। उसकी नज़रों से कोई गुनाहगार बंदा नहीं बच सकता। उसे अपने किए की ज़रूर सज़ा मिलती है। लंगर को भी अल्लाह ने चोरी की सज़ा दी। हर तरफ गहरी खामोशी छा गई। सब चुप बैठे थे, मगर हाथों ज़्यादा देर खामोश न रहा। उसने दुहाई दी, साईं सरदार, तू सुखी सेहत होई, माल जान सब की खैर होई। उसने कदर तवक्कुफ किया। साईं, लंगर को तो चोरी की सज़ा मिल गई, पर मेरा क्या बनेगा? वो दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। साईं, मैं मुसीबत दा मारिया गरीब जतवाल हूँ, मैं तबाह हो गया। मुझे मेरा ऊँट दिलवा दे, तू सदा जीवी, रब राजी होवी। तुझे तेरा ऊँट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, पर तू चुप करके खड़ा रहे। सरदार मज़ारी ने उसे तसल्ली दी, गर्दन को हल्का सा खम दिया। जलावत और खमीसू खां की जाने मुतवज्जा हुआ। उन्हें कहरालूद नज़रों से देखा। तुंद और थीके लहजे में बोला, लंगर ने चोरी की थी, उसे अपने जुर्म की सज़ा मिल गई। तुम दोनों ने झूठी गवाही दी थी, तुमको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? जलावत और खमीसू नज़रें नीचे किए दम बखुद खड़े रहे। उन्होंने कुछ न कहा। उनके चेहरों पर खौफ के साए फैल गए। सरदार शहजोर खां मज़ारी ने सामने बैठे हुए गांव के बड़े बूढ़ों पर नज़र डाली। उनमें से जो सबसे ज़्यादा मुअम्मर बलोच नज़र आता था, उसे मुखातिब करते हुए दरियाफ्त किया, बाबे, तू उम्र में सबसे बड़ा नज़र आता है। तूने ऐसे बहुत मुकदमे देखे होंगे। तू बता, झूठी गवाही देने की क्या सज़ा होनी चाहिए? तू बलोचों की रीता रस्मा ठीक तरह जानता है, उनके कानून को भी समझता है। मैं तेरी राय और तेरी सलाह मालूम करना चाहता हूँ। बूढ़ा लाठी के सहारे उठकर खड़ा हो गया। उसके सर और दाढ़ी के बाल रुई के गालों की मानंद सफ़ेद थे। कमर भी झुकी हुई थी, दांत गिर गए थे। वो पोपले मुंह से लड़खड़ाती आवाज़ में गोया हुआ, सरदार, तूने ठीक सोचा। मेरी उम्र बहुत है। तूने अपने माँ प्यो से सुना होगा, जब लॉर्ड संडेमन ने कलात पर चढ़ाई की तो मज़ारियों का सरदार इमाम बख्श भी अपना लश्कर लेकर उसके साथ गया था। उसके लश्कर में मेरा प्यो भी था। तब मैं जवान तो नहीं था, पर इतना वड्डा ज़रूर था कि उसकी भेड़ बकरियों के गले की पूरी तरह देखभाल कर सकता था। उसका बहुत बड़ा रमग होता था। 50 से ऊपर बकरियां रही होंगी। उसने ठंडी सांस भरी, पर मेरा प्यो लड़ाई से न लौटा। मैंने उसे फेर कभी नहीं देखा। वो बहुत बहादुर और जोरावर था। सरदार मज़ारी ने उकता कर बूढ़े को टोका, बाबे, मैंने तेरे प्यो के बारे में नहीं पूछा था, तू मेरे सवाल का जवाब दे। बूढ़ा बलोच, जो बात कहते कहते पटड़ी से उतर गया था, फौरन संभला, खनकार कर गला साफ किया और यूं गोया हुआ, सही सरदारा, मैंने इन बूढ़ी आंखों से न जाने कितने ऐसे मुकदमे देखे हैं। उसने आंखों पर लगी हुई मोटे मोटे शीशों की बोसीदा ऐनक दुरुस्त की। कायदा कानून तो यह है कि चोर अगर अपना जुर्म ना माने तो उसे अपनी सच्चाई साबित करने के लिए जलती आग में से गुजरना पड़ता है या पानी में गोता लगाना होता है, ऐसे ही जैसे लंगर को करना पड़ा था। बूढ़े ने लंगर खान की लाश की जानिब इशारा किया। लंगर ने चोरी की थी, उसे अपने जुर्म की सज़ा मिल गई। उसके दोनों गवाह झूठे ठहरे। उसने नज़र भरकर जलावत और खमीसों को देखा।
झूठे गवाहों की सज़ा ये होती है कि उनकी ज़बानें काट दी जाती हैं ताकि आगे झूठी गवाही न दे और उन्हें देखकर दूसरे तौबा करें, इबरत पकड़ें। उसने बात ख़त्म ही की थी कि एक और बूढ़ा उठकर खड़ा हो गया। उसने ऊंची आवाज़ से कहा, सही सरदार, मेरी उम्र वैसे तो दीनदार से कम है। उसने बूढ़े की जानिब हाथ उठाकर इशारा किया, पर मैंने भी ऐसे मुकदमे बहुत देखे हैं। मुझे पता है झूठी गवाही देने की ये सज़ा मुद्दत हुई बंद कर दी गई। ऐसा न कहे, मुझे भी पता है ये सज़ा बंद नहीं की गई। बूढ़े दीनदार ने वजाहत की, हाँ, इतना ज़रूर है कि अब ऐसी सज़ा नहीं दी जाती, पर इसके साथ ये भी है कि अब चोर के लिए जलती आग में से गुजरकर या गहरे पानी में गोता लगाकर अपने तई बेगुनाह साबित करने का पहला सा चलन भी नहीं रहा। उसने गर्दन ऊंची की और शहज़ोर मज़ारी के चेहरे को नज़र भर कर देखा। इसका मतलब ये तो नहीं कि बलोचों का पुराना कानून ख़त्म हो गया। बलूचिस्तान में अब तक यही कानून चलता है। उसने कदर तवक्कुफ से कहा, ये तो सरदार की मर्जी है, जैसे चाहे मुकदमे का फैसला करे। उसका लहजा ऊंचा हो गया। सरदार ने बिल्कुल सही फैसला दिया और बलोचों के कानून की रूह से ठीक दिया। हाजरीन पर सुकूत तारी हो गया। हर तरफ खामोशी छा गई। जलावत और खमीसू घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और सर झुकाकर गिड़गिड़ाने लगे, सई तू सदा जीवें, तेरे बाली बच्चे जीवें, तू सुखी सेहत हुई। सई सरदार, हमसे भूल हो गई, हमारी गलती माफ़ कर दे। सई आगे ऐसी भूल नहीं होगी, कभी नहीं होगी। वो झुककर नाक और पेशानी रेतीली ज़मीन पर रगड़ने लगे। सर ऊपर करो, सरदार मज़ारी ने दोनों को डांटा। उन्होंने अपने सर उठाए और आजिज़ी से मज़ारी की जानिब देखने लगे। मज़ारी ने पूछा, बताओ, चोरी का ऊँट कहाँ है? सच सच बताना। खमीसू खामोश रहा। जलावत बोला, सरदार, हमने ऊँट नहीं देखा। सही कसम ले ले, हमने हाथों का ऊँट बिल्कुल नहीं देखा। सही माफ़ी दे दे, हमसे भूल हो गई। ऐसे काम नहीं चलेगा। मज़ारी ने गरज कर ऊंची आवाज़ से कहा, तुम दोनों की सज़ा सिर्फ उसी सूरत में माफ़ हो सकती है कि ऊँट का फौरन कोज लगाओ और उसे पेश करो। दोनों ने एक ज़बान होकर इल्तिजा की, सरदार, हम ऊँट कहाँ से ढूंढ कर लाएं? हमें कुछ पता नहीं ऊँट कैसा है, कहाँ है और किसके पास है। जब तुमको कुछ पता नहीं तो गवाही देने क्यों आ गए? भूल हो गई साईं, माफ़ी दे दे, तू सदा जीवें। सरदार शहज़ोर खान मज़ारी ने हुक्के की नय संभाली, मुंह से लगाई, चुपचाप बैठा हुक्के पर कश लगाता रहा। सामने बैठा हुआ हर शख्स दम बखुद था, खामोश था। फिर इस खामोशी में मज़ारी की भारी भरकम आवाज़ उभरी। वो कह रहा था, जलावत और खमीसू ने झूठी गवाही दी है। दोनों ने अपने जुर्म को मान भी लिया है। सरदार के चेहरे से जलाल टपक रहा था। वो अपना फैसला सुना रहा था। जलावत और खमीसों पर 400 रुपये जुर्माना आयद किया जाता है, जिसे चाकर खां के पास जमा कराना होगा। हाथों जतवाल का ऊँट चोरी हुआ है, उसे ऊँट मिलना चाहिए। जलावत और खमीसों उसे ऊँट वापस करेंगे। दोनों को 15 रोज़ की मोहलत दी जाती है। तब तक ज़मानत के तौर पर दोनों के बाल बच्चे कैद में रखे जाएंगे। अगर उन्होंने इस मुद्दत में हाथों का ऊँट और जुर्माना पेश नहीं किया तो दोनों के हल बैल और घर बार जब्त कर लिया जाएगा। उन्हें ज़मीन से बेदखल कर दिया जाएगा। फैसले पर फौरन अमल दरामद किया जाए। चाकर खान को हुक्म दिया जाता है कि वह जलावत और खमीसों के बाल बच्चों को गिरफ्तार कर ले। कचहरी अब बर्खास्त की जाती है। चाकर खान सरगानी आगे बढ़ा, तोदे के ऊपर पहुंचा। उसने शहज़ोर मज़ारी की टांगों और कमर के गिर्द लिपटी हुई खैरी की गिरा खोल दी। मज़ारी ने टांगें फैलाकर सीधी की, उठकर खड़ा हुआ, तोदे से नीचे उतरा और रहीमदाद के हमरा बस्ती की जानिब रवाना हो गया। शाम का अंधेरा धीरे धीरे बुलंदी से नीचे उतरने लगा। सरदार मज़ारी और रहीमदाद इहाते के गोशे में खुले आसमान तले मोंढों पर बैठे शराब नोशी कर रहे थे। शराब बबूल की छाल से कशीद की गई थी, बहुत तल्ख थी, तुंद और तेज़ भी थी। अंधेरा बढ़ता गया।
दोनों देसी शराब के घोंट आहिस्ता आहिस्ता भरते रहे। कदमों की आहट सुनकर उन्होंने मुड़कर देखा। चाकर खां सरगानी अंधेरे से निकलकर उनकी जानिब बढ़ा। उसके हमरा दो औरतें भी थीं। उन्होंने बोछन के आंचल से बुकल मारकर अपने चेहरों को इस तरह छुपा रखा था कि सिर्फ पेशानी और आंखें नजर आती थीं। वो निगाहें नीची किए हुए सहमी हुई खड़ी थीं। सरदार मजारी ने दोनों को खुमारआलूद नजरों से देखा। उसके बुशरे से इस्तेजाब हवीदा था। चाकर खां सरगानी पुराना मिजाज शनास था। फौरन उसके चेहरे के तासुरात भांप गया। आगे बढ़कर बोला, सही सरदार, ये जलावत और खमीसों की रन है। उनके बच्चे भी हिरासत में ले लिए गए हैं। उसने नौकरों की कोठड़ियों की सिमत हाथ उठाकर बताया, उधर एक कोठड़ी में बंद हैं। मजारी का चेहरा दमकने लगा। होंठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट उभरी। झूम कर बोला, इन्हें नहला धुला, उजले कपड़े पहना, रोटी खिला और कमरों में पहुंचा दे। चाकर खां कोरनिश बजा लाने के अंदाज में जरा सा झुका और खामोशी से वापस चला गया। दोनों औरतें भी उसके पीछे पीछे चली। दालान के सुतून से लटकी हुई लालटेन की रोशनी में सुकड़ी सुकड़ाई आगे बढ़ रही थी। मजारी नजरें उठाए दोनों को तीखी नजरों से देखता रहा। उनके जिस्मों के पेच और खम का जायजा लेता रहा। जलावत और खमीसों की बीवियां चाकर खान सरगानी के साथ अंधेरे में ओझल हो गई। सरदार मजारी ने गिलास उठाकर लंबा घोंट भरा। वो खामोश था। रहीमदाद भी खामोश था। इहाते में खामोशी छाई थी, मगर गांव के किसी घर में शादी का हंगामा था। ढोल की थाप पर नौजवान औरतें और लड़कियां आवाज़ से आवाज़ मिलाकर गा रही थीं। उन्होंने एक शोख सरायकी गीत छेड़ा। ये पहाका था। रात के सन्नाटे में उनकी आवाज़ें दूर तक सुनाई दे रही थीं। वो लहक लहक कर पहाके के बोल अलाप रही थीं। सोहनी चली ए बाजार, मारे अख उठावे यार, तैडे जोबनते बहार, तैडा मन करे धक धक। पहाके का आखिरी बोल उन्होंने मौके की मुनासबत से बिगाड़ दिया था और ढोलक की तेज थाप पर उसे बार बार दोहरा रही थी। बोल के साथ साथ कहकहे भी बुलंद हो रहे थे। रहीमदाद ने अपना गिलास उठाया, होंठों से लगाया, बड़ा सा घोंट भरा। उसकी निगाहें उस सिमत उठी थीं जिधर सरगानी के हमरा जलावत और खमीसों की नौजवान बीवियां गई थीं। क्या देख रहा है चौधरी? मजारी ने एक आंख दबाकर शोखी से कहा, इधर भी जमीन अलर्ट करा ले, अभी बहुत मतरूका राजी पड़ी है, जिम्मेदारी का मजा आ जाएगा। ऐश करेगा ऐश। तू कहता है तो अलर्ट करा लूँगा। रहीमदाद ने इनकार नहीं किया। कदरे तामुल के बाद कहा, मुझे एक बात बता। पूछ। क्या पूछना चाहता है? रहीमदाद के जहन में लंगर खान की मौत के बारे में जो वसवसे और खदशात कुलबुला रहे थे जबान पर आ गए। उसने झिझकते हुए कहा, लंगर दरिया में डूबकर मर गया। उसने तेरे ही हुक्म पर पानी में गोता लगाया था। उसके इस तरह मरने पर तेरे खिलाफ कत्ल का केस बन सकता है। चौधरी, तू किस चक्कर में पड़ गया? शहजोर खां मजारी ने बेनियाजी से कहकहा लगाया। पहाका सुन, बहुत फड़कदार है। उसने गिलास उठाकर आंखों के सामने किया। लम्हा भर तक उसे तकता रहा, फिर हाथ बढ़ाकर रहीमदाद के गिलास से अपना गिलास टकराया। नशे से लहरा कर बोला, सही चौधरी, अभी तो रात शुरू हुई है। रहीमदाद को सरदार मजारी की बेनियाजी पर सख्त ताज्जुब हुआ, लेकिन उसका इजहार न कर सका। खामोश बैठा रहा। रात के सन्नाटे में ढोलक ठुनकती रही। पहाके के बोल गूंजते रहे। तैडा यार ए सुनार, तैडा यार ए मुनह्यार। कुछ देर बाद ढोलक की टकटक रुक गई। कहकाहों का एक तूफान उमड़ा। जल तरंग की मानिंद देर तक फजा में खनकता रहा। कहकहे थमे तो एक बार फिर ढोलक पर ताप पड़ी। तेज और तेज होती गई। नौजवान सुहागनों और चंचल दोशीजाओं की दूसरी टोली ने पहाके के जवाबी बोल छेड़े। वो झूम झूम कर ऊंची आवाज से गाने लगी, सुनार देवी झांझरा, मुनियार देवी हार, तू चलता बाजार। रात गुजरती गई, काजल की तरह काली होती गई। सरदार शहजोर मजारी ने गिलास ख़त्म किया और उठकर खड़ा हो गया। रहीमदाद भी खड़ा हो गया। दोनों संभल संभल कर कदम उठाते हुए बरामदे की जानिब बढ़े। सीढ़ियाँ तय की, ऊपर पहुँचे।
बरामदे में कुछ दूर चलने के बाद अपने अपने कमरों की सिमत बढ़े। कमरे में लैंप रोशन था। उसकी हल्की हल्की रोशनी में सामने पलंग पर एक नौजवान औरत पैर लटकाए गुमसुम बैठी थी। वो सुर्ख गोट का घुघरा पहने हुए थी। चोला जर्द रंग का था। उसके गिरेबान पर स्याह धागे से कशीदाकारी की गई थी। सर के बाल स्याह और चमकदार थे। चेहरा तेज धूप में कामकाज करने से तप कर तांबे की मानिंद सुर्ख पड़ गया था। उसकी उम्र 25 साल से जायद ना थी, मगर सख्त मशक्क़त और ग़िज़ायत की कमी के बायस वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगती थी। रहीमदाद कमरे में दाखिल होकर आगे बढ़ा और उसके करीब पलंग पर बैठ गया। वो कसमसाई और अपना बदन सुकेड़ लिया। रहीमदाद ने मुस्कुरा कर पूछा, तू जलावत की घरवाली है या खमीसों की? मैं खमीसों की जाल हूँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया। तेरा नाम क्या है? क्या करेगा जानकर? वो बेरुखी से बोली। इतना नखरा ना दिखा, आराम नाल गल बात कर। रहीमदाद ने उसे मनाने की कोशिश की। मुस्कुरा कर बोला, यूं रूठी रूठी तू चंगी नहीं लगती। वो कुछ न बोली, खामोश बैठी रही। उसका चेहरा सपाट था, आंखें बुझी बुझी थीं। रहीमदाद खामोशी से उकता कर बोला, चुप करके क्यों बैठी है? गलबात कर। उसने नशे में झूमकर हल्का कहकहा लगाया। तुझे पता नहीं, मैं चाहूं तो खमीसू को माफ़ी दिला सकता हूं। खमीसू की बीवी ने चौंक कर रहीमदाद की जानिब देखा। तू ऐसा कर सकता है? उसके अंदाज में हैरत और इस्तेजाब था। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूं। रहीमदाद ने गर्दन उठाकर ऊंची की। तू फिक्र न कर, खमीसू को माफ़ी मिल जाएगी।